یہ ہر مسلمان ہے یہاں ختم نبوت کے لیے۔ معزز سامعین، جیسے چاہیے تھا ہم آپ کو وسیع پنڈال تو میسر نہ کر سکے، آج پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک یہ مسجد، یہ پنڈال ہم سے قلت کا شکوہ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس ختم نبوت کانفرنس کو اور وسعت دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج یہ کانفرنس جن کی محنت کا ثمر ہے، جن کی زیر صدارت، جن کی زیر نگرانی ہونا قرار پائی، میں اس ہستی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اگر جس کی کال پہ آپ تشریف لائے اگر وہ اظہار تشکر بھی نہ کریں تو یقیناً یہ خیانت ہوگی۔ میں نے جب شیخ صاحب کی سفید داڑھی کو دیکھا، سفید بالوں کو دیکھا، ان کے بڑھاپے کو دیکھا اور پھر ان کی صورت کو دیکھا، ان کے جوان جذبے کو دیکھا تو ان کا بڑھاپا، ان کے جذبوں، ان کا جذبہ ان کے بڑھاپے کا انکار کر رہا تھا، اور ان کے جوان جذبے کو دیکھ کر مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آ گیا کہ جذبوں کو میرے دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، جذبوں کو میرے دیکھ جہاں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اظہار تشکر کے لیے سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ محترم جناب رفیق احمد شورکوٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر میرے مرحوم قائد شہید ملت علامہ احسان الہی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند صاحبزادہ معتصم الہی ظہیر صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کے فوراً بعد اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں مصر سے آئے ہوئے مہمان قاری محمد صلہ عبداللہ، ان کے بعد صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ صاحب، ان کے فوراً بعد سید صفدین شاہ صاحب نقوی، ان کے بعد مولانا دوسرے قاری احمد صلہ عبداللہ، اور آخر میں ناصر مدنی صاحب کا خطاب ہوگا۔ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرات، یہ کانفرنس کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ آپ پہلے میرے قائد محترم ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب سے سماعت فرما چکے ہیں کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے کہ 6 ستمبر کو ہم نے پہلے یہ کانفرنس رکھی تھی، قیادت کے حکم پر ہمیں یہ تبدیل کرنی پڑی، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ پھر ملک کے اندر کانفرنسیں ہوتی رہی، اور پہلی کانفرنس ضلع جنگ کی چنیوٹ کے ڈاکخانہ گراؤنڈ میں مجھے یاد ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اس کانفرنس میں تشریف نہ لا سکے، مرحوم حافظ عبدالعلیم یزدانی کروا رہے تھے۔ میں اس وقت ڈیوٹی سسٹیج پہ کر رہا تھا جامعہ تعلیم الاسلامہ مکانجن کی طرف سے، مجھے بڑا یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرہ ذرہ۔ پھر 1987 کے اندر دھماکے سے 3 دن قبل 20 مارچ 1987 کو اسی ڈاکخانہ گراؤنڈ چلیوٹ میں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر نے گرجتے ہوئے بادلوں میں اور برستی ہوئی بارش میں آندھیوں کے چکر چلتے ہوئے، لیکن اس احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ چند نوجوان جو باسوں کے گرد ہیں وہ تھامے رکھے، باقی بیٹھ جائیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، آج بھی ڈاکخانہ گراؤنڈ چلیوٹ کا گواہ ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر نے جو ہی کہا دنیا بیٹھ گئی، بارش ہوتی رہی، طوفان چلتا رہا، چکر چلتے رہے، آندھییں آتی رہی، بارش آتی رہی، شیر گرجتا رہا۔ بہرحال پھر وہاں کانفرنس ہی ہوتی رہی، اس کے بعد چلیوٹ اور جنگ الگ الگ ہو
गए। सिला जंग में खत्म नबुव्वत के उन्वान से जमात की कोई कॉन्फ्रेंस न रही। मैं बड़ी देर इस पे गौर करता रहा, बड़ी देर में सोचता रहा कि क्या किया जाए। आखिर मैंने फैसला किया कि सुस्ती की चादर को उतार दिया जाए, इस जनाबे वाला अपडेट न की जाए। जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी में खत्म नबुव्वत का एक पिंडाल सजा दिया जाए, स्टेज सजा दिया जाए। तो मैंने 6 सितंबर का ऐलान कर दिया, लेकिन हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह, सैयद सद्दे नकवी हाफिज़हुल्लाह, इन कायदीन ने कहा कि 14 सितंबर कर दीजिए। मैंने 14 सितंबर को रखी और आज हमने वहां करना थी। ये मेरे अल्लाह की मर्जी है लोगों, मौसम ने साथ नहीं दिया, वहां पिंडाल नहीं हम सजा सके। बहरहाल इंशाअल्लाह अब मैं आपसे एक सवाल पहले करना चाहता हूं कि क्या ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए खत्म खत्म नबुव्वत? मेरा साथ दोगे? इंशाअल्लाह मैं ऐलान कर रहा हूं, मेरी जिंदगी रही 6 सितंबर बरोज एतवार 2026 को बकर मंडी में फिर ये कॉन्फ्रेंस होगी, इंशाअल्लाह होगी। और पूरे तज़्किए तशाम के साथ ये जब तलक में जिंदा रहा, जब तलक में जिंदा रहा, ये सितंबर में कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह होती रहेगी। और मुझे उम्मीद है जब मैं चला गया, मेरे बनने के बाद ये नई नस्ल भी ये पिंडाल सजाती रहेगी। हज़रात जरा आगे चलिए। 6 सितंबर, ये सितंबर का महीने के इंतखाब मैंने क्यों किया? इसलिए कि जनाब 1974 की 22 मई की तारीख थी। मुल्तान के कुछ तालिब इल्म वो गए जनाब ये पलाई इलाके के ये सवात वगैरह की सैर के लिए। जब रबवा स्टेशन पे गाड़ी रुकी, बच्चे उतरे, मिस्टर कॉलेज के कुछ तालिब इल्म थे, उन्होंने ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे लगाए। कादियानियों ने इस बात को याद रखा। 29 सितंबर को जब बच्चे वापस आ रहे थे, उसी जनाब एक्सप्रेस में जब जनाब तू ही रबवा का स्टेशन पे गाड़ी रुकी, तो कादियानी मुसल्ला बदमाश ढूंढे। उस वक्त जो के कादियानियों का सिक्का चलता था, अभी तक कादियानियों को काफिर करार नहीं दिया जा गया था, तो उन्होंने हमला किया। बच्चों ने दरवाजे बंद किए गाड़ी के, पुलिस तमाशाई बनी रही। उनको लोग कादियानी कसीर के गाड़ी से नीचे फेंकते रहे। जनाब कुल्हाड़ियां थी, खंजर थे, हाथियां थी, डंडे थे, कुल्हाड़ियां बच्चों को मारते रहे। उनके बड़े जो उनका बड़ा स्टूडेंट था, उसको मार मार के उन्होंने बेहोश कर दिया। आखिर पौन घंटे के बाद ये सिलसिला रुका। बच्चों को उठा के उन डब्बों में डाल दिया गया। फैसलाबाद में आग की तरह ये खबर फैली कि बच्चों को बहुत ज्यादा मारा गया है। कादियानी हुकूमतों ने जनाब वहां जुल्म की इंतहा कर दिए। पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा, बावजूद इसके कि 3 मिनट के बाद सिग्नल डाउन कर दिया गया, गाड़ी को न चलने दिया गया। आखिर जनाब लोग फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। मखलूक थी, मजमा था, जवान थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, और उन्होंने कहा आज हम इस गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे, रब्बे जाके इंतकाम लेंगे। उलमाए कराम पहुंचे, मौलाना मोहम्मद इसाक चीमा, मौलाना मोहम्मद रफीक बदलपुरी, मौलाना ताज महमूद लौलाक रिसाले वाले, ये उलमा पहुंचे। इन्होंने कहा लोगों इस मुकद्दस खून की कसम। और फिर उसी दिन मीटिंग हुई पूरे मुल्क के उलमा की, और बहुत उसके बाद फिर ये तारीख चली, हत्ता के कई महीने ये तारीख चलती रही। बच्चे ज़बा होते रहे, जवान ज़बा होते रहे, बूढ़े अपने जानों का नजराना खत्म नबुव्वत के लिए देते रहे। आखिर 6 सितंबर का दिन आया 1974, ऐलान हो गया। कादियानियों ने कहा, और खास हनीफ रामे ने, जो कादियानी तो नहीं था, कादियानी नवाज जरूर था, उसने कहा कि मैं 7 सितंबर को मार मार के मौलवियों के पेट से हलवा निकालूंगा। मेरा अल्लामा शेर गड्ढा पिंडी के अंदर उसा क्या तेरे प्यो गलिया हलवा सानू कौम खवेंदी है साडे मुकद्दर, तैनू केड़ी तकलीफ है? लेकिन कादियानी नवाज था। बहरहाल आखिरी रात बड़ा असला पहुंचा दिया गया जगह जगह कि 7 सितंबर को फैसला कुन ये मार्का लड़ा जाएगा। लेकिन अल्लाह का खास फजल हुआ, 7 सितंबर को 4:01 पर कादियानी को काफिर करार दे दिया गया। लेकिन आज भी
बड़े कलीदियों पे कादियानी वो मौजूद और फायद है, लिहाजा जो कानून बना है उसको लागू करने की जरूरत है। बहरहाल कायदे मोहतरम तशरीफ लाने वाले हैं, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप क्या ये पसंद करते हैं कि क्या ये खत्म नबूवत का स्टेज सजना चाहिए शोर कोट में? हाथ उठा के वादा कीजिए, हाथ उठा के खड़े होके अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, वादा कीजिए कि खत्म नबूवत के लिए हम रखवाले भी बनेंगे, पहरा दोगे मोहम्मद की खत्म नबूवत पे। और 6 सितंबर 2026 को इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी, अल्लाह ने सेहत दी तो बक्कर मंडी के अंदर तारीख साज कॉन्फ्रेंस होगी। बैठ जाइए, मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ, मौसम ने साथ नहीं दिया, सैलाब आ गया, बारिशें आ गई, वहाँ पानी था, हमने लेट नहीं की, पहले ये सोचा कि कल दिन लेट करें, लेकिन हमने कहा नहीं, अभी कर देनी चाहिए, अल्लाह के सपुर्द मामला, ये रब की मर्जी है। तो अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ तहरीर और तकरीर के फील्ड मार्शल, दुनिया के अजीम सियासतदान और मजहबी सकालत, खतीबे अरब व अजम, पूरी दुनिया के अंदर अहले हदीस का लोहा मनवाने वाले मेरे कायद, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जिसने कहा था कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी, मैं जुल्मत की घटाओं से लड़ता रहा बरसों, तादेर जुल्मत की घटा मुझे याद करेगी, अहले वतन ने मुझे मंदिर से है हटाया, मेरे जानने को दुनिया सदा याद करेगी। लोगों कितने साल हो गए, अल्लामा ज़हनों से नहीं निकला। बहरहाल अब मैं आखिर में हर उस साथी का शुक्रिया, नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि ये ताजदार खत्म नबूवत जिसने जिस अंदाज में भी तावन किया है, जिस अंदाज में दामे दिल में सुखने, अल्लाह उनके ये यानी इसके साथ तावन कबूल मंजूर फरमाए। मैं तमाम साथियों का पूरी तहसील छोरकोट के मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स, इसी तरह बाकी तमाम अहबाब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मल्लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं कर सकता। मैं आप अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ शहीद अरब व अजम, कायद मिल्लत, शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अजमल साहबजादा हाफिज मोहतसिम इलाही ज़हीर को नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, शान रिसालत, शान रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत साहबजादा मोहतसिम इलाही ज़हीर।